हाँ जी बेटा, ये अपना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਅਗਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਬ੍ਰਿਜ। ਬ੍ਰਿਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਫ G is a connected graph, ਜੇ G ਆਪਣੇ ਕੋਲ connected graph है, then an edge E is called the bridge. If by deleting E, G becomes disconnected, or we can say G minus E is disconnected graph. Bridge is also called the cut edge ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਐਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ G ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤੇ E ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਐਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਕਹਾਂਗੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਲੀਅਰ? ਇਫ ਬਾਏ ਡਿਲੀਟਿੰਗ E, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਐਜ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ BE ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ B ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ABCD ਅਤੇ EFG ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗ੍ਰਾਫਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜ ਹੈ ਉਹ ਕੋਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਕੋਈ ਵੀ ਐਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹੇਅਰ ਸੋ BE ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ। ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਐਜ ਵੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਐਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਐਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ BD ਹੈ, BD ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ CD ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਐਜ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਬ੍ਰਿਜ ਕਹਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ ਫਲੂਰਿਸ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਫॉर ਈਲਰ ਸਰਕਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੂਰਿਸ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂਰਿਸ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਲੈਟ G be a connected graph ਹੈ with exactly 2 vertices of degree odd degree। ਠੀਕ ਹੈ, G ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 vertices ਹੈ odd degree ਦੇ। ਫਿਰ ਉਲਰ path we have to start from a vertex of odd degree and path will end at the other vertex of odd degree. The rest of steps are same as the Euler circuit। ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ Euler circuit ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦ ਪਾਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ G ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਵਿਦ ਈਚ ਵਰਟੈਕਸ ਆਫ ਈਵਨ ਡਿਗਰੀ। ਕਲੀਅਰ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ G ਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਵਿਦ ਈਚ ਵਰਟੈਕਸ ਆਫ ਈਵਨ ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਥਡ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਪਾਥ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। G ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਵਿਦ ਵਰਟੈਕਸ ਈਵਨ ਡਿਗਰੀ। ਚੂਜ਼ ਐਨੀ ਵਰਟੈਕਸ V1 ਆਫ G ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਸਰਕਿਟ। ਅਤੇ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ V1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਿਲੈਕਟ ਐਨ ਐਜ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ V1 ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਈਵਨ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਈਵਨ ਐਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਸੱਚ ਦੈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਸਟ ਨੋਟ ਬੀ ਏ ਬ੍ਰਿਜ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਜ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈਟ ਦਾ ਦਿਸ ਐਜ ਬੀ V1 ਟੂ V2, ਯਾਨੀ ਕਿ V1 ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ V2 ਵਰਟੈਕਸ। ਦੈਨ ਪਾਥ ਇਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਬਾਈ P ਪਾਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ P ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। E1 ਰਿਮੂਵ E1 ਫਰੋਮ ਗ੍ਰਾਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਜ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ ਚੈੱਕ ਆਲ ਦਾ ਐਜਸ ਫਰੋਮ V2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ V2 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ V2 ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਜਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗੇਨ ਚੂਜ਼ ਐਨ ਐਜ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਜ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਐਜ ਮਸਟ ਨੋਟ ਬੀ ਏ ਬ੍ਰਿਜ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਲੀਅਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਲਸੋ ਰਿਮੂਵ ਦਿਸ ਐਜ ਫਰੋਮ G।
इस तरह आपां की एजेस नूं रिमूव करते चले जावांगे टिल कदों तक विल गिव अस रिक्वायर्ड उलर सर्किट, जब तक कि अपने को रिक्वायर्ड उलर सर्किट नहीं आ जाता गा उदों तक आपां की करांगे हर अगले वर्टेक्स ते जांदे रहांगे थ्रू एजेस। बट इस चीज़ का ध्यान रखना है वो ब्रिज नहीं होनी चाहिए, जी भी एज तुसीं चूज़ कर रहे हो ब्रिज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्रिज नूं जे आपां रिमूव कर दिता गा तां वो अपने कोले डिसकनैक्टेड ग्राफ बन जाएगा। पाथ दे विच भी अपने को इस तरह ही रहेगा प्रोसैस। तो आप ये एग्जाम्पल दे दें कि एग्जाम्पल की हैगी यूज फ्लूरिस एल्गोरिदम, तुहानूं इस कोई भी सवाल आ सकता है, इंपोर्टेंट सम्स है टू कंस्ट्रक्ट यूलर पाथ और यूलर सर्किट इन फॉलोइंग ग्राफ। आ तुहानूं ग्राफ दिता होया है, तुसीं की है बनाना है इहदा यूलर सर्किट क्लियर किस तरह बनाना है। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी तुसीं ये स्टार्ट करना है एल्गोरिदम तो सब तो पहला यू हैव टू राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स। ठीक है, हरेक वर्टेक्स की डिग्री है, क्योंकि तुहानूं पता होना चाहिए कि वो यूलर ग्राफ बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। यूलर ग्राफ का क्या पता, या तो सारे वर्टिसेस की डिग्री की होनी चाहिए ईवन होनी चाहिए, या दो वर्टिसेस की डिग्री की होएगी ओड होएगी, उस तो ज़्यादा नहीं होएगी। क्लीयर, तो आप हरेक वर्टेक्स की जी डिग्री है वो लिख लीगी, दैट इज़ ईवन। हरेक वर्टेक्स की डिग्री की है अपने को ईवन है, देयरफॉर एक ही अपने को इस तो अपन पता चल जाएगा कि बना रहा है यूलर सर्किट बना रहा है। ओके, यूलर सर्किट बना रहा है तो आप करांगे इनू बनाना किस तरह, इस तरह तुसी बेटा टेबल बना के इनू एल्गोरिदम नू सॉल्व करना है। आगे तुहाडे स्टैप्स आ जाएंगे, सीरीयल नंबरस तुसी लिख लेने, उस तो बाद करंट पाथ जिहड़ा अपना पाथ है उन्होंने तुसी पी नाल डिनोट करना है, जो भी आपां पाथ चूज़ करांगे। तो नैक्सट एज, ठीक है, वर्टेक्स आप इत्थे कि आप वर्ड्स ही लिखांगे पाथ दे विच, ते ये वाले पोर्शन आप लिखांगे एजिस कि आप किहड़ी एज ते जा रहे हैं। तो उस तो बाद डिस्क्रिप्शन लिखांगे कि वो किस तरह की एज है, जिमें कि आपने कि सब तो पहला स्टार्ट किया ए तो। क्लीयर, अपने डायग्राम है आप ए तो स्टार्ट किया। हुण देखो ए की डिग्री हैगी 4, इत्थे अपने को 4 एजिस जा रही है, आप जा तो किसी भी एज ते सकते हैं। क्लीयर, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो ब्रिज नहीं होनी चाहिए। ओके, सो आप सीधा ही जोड़ा है अपने को ए तो बी ते भी जा रही है, सी ते भी जा रही है, डी ते भी जा रही है, किसी भी एज ते जा सकते सी। क्लीयर, आप ए तो पहला बी ते गए, ठीक है, विच विल गो टू बी, कोई भी एज चूज़ कर लो तुसी। क्लीयर, ए तो बी अपनी तरफ तो भी तुसी कर सकते होंगे। ए वर्टेक्स तो शुरू किया, एज आपने ए बी चूज़ की। क्लीयर, कोई भी एज है, ठीक है, नो एज इज कट एज चूज़ एनी। क्लीयर, ये भी चीज़ इन्होंने भी यही चीज़ लिखी, क्योंकि कोई भी एज जी है वो अपने को कट एज नहीं हैगी, तो आप कोई भी एज चूज़ कर सकते थे, इन्होंने ए बी चूज़ कर ली। हुण देखो बी ते आप पहुँच गए, ए वाली एज नूं रिमूव कर दिता गा। क्लीयर, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर पिछली एज की अपने को रिमूव हो गई, हुण ये खत्म हो गई। हुण जो बी ते आ गए तो बी की डिग्री हैगी है 2। क्लीयर, इधरों तो आप एंट्री किया तो रिमूव हो गई। हुण अब उदों बाद अपने को एक ही एज रहेगी, इत्थे कोई ऑप्शन नहीं, आपां इस एज ते ही जाना पेगा, आप बी सी। क्लीयर, ए बी अपने को आ गया, अगली एज आपने जी है बी सी वाली चूज़ कर ली, क्योंकि अपने को एक ही एज जी बी तो रह गई सी। उस तो आप सी वर्टेक्स ते आ गए, ए बी सी वर्टेक्स ते आ गए। हुण सी वर्टेक्स ते आके देखो ये 4 एजिस है, 4 एजिस है जिहदे विचों पिछली एज तो अपनी खत्म ही हो गई। ओके, बी वाली, तो बाकी एजिस तुसी देख सकते हो कि आप किहड़ी भी चूज़ कर सकते हो, कोई भी एज जी आप चूज़ कर सकते हैं, बस वो कट एज नहीं होनी चाहिए। क्लीयर, तो आप की करांगे पहला इस सर्किट नूं पूरा करांगे, उहदे वास्ते आप कीता सी तो डी ते चले गए। ओके, सी तो आप किया चूज़ की सी टू डी एज। क्लीयर, नो एज फ्रॉम सी इज कट एज तो कोई भी नहीं हैगी सी, सो आप किया सी टू डी दे चले गए, कोई भी एज चूज़ कर सकते सी। डी ते जाके हुण अपने को देखो ऑप्शन एक ही हैगी, आप ए ते ही जा सकते हैं, पिछले वाली कट होगी रिमूव होगी, तो सो आपने अगली चूज़ कर लेती कि डी ए। क्लीयर, ओनली 1 एज फ्रॉम डी रिमेन्स, नाल डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है तुसी। ए ते चले गए, देखो
ए ते जाण नाल ए बी वाली ऑलरेडी कट सी, ए डी भी कट हो गई। हुण अपने कोले दो एजिस बचे, ए जी या ए सी, कोई भी चूज़ कर सकते होंगे, चूज़ एनी, क्योंकि दोनों ही अपने कोले कट एजिस नहीं है, तो आप ए सी ते चले गए। ओके, अगली आपने जी चूज़ की गई एज ए सी वाली चूज़ की गई। क्लीयर। हुण सी ते जो गए तो बी सी भी अपनी रिमूव हो गई, सी ए भी रिमूव हो गई, सी डी भी रिमूव, सारियां हो चुकियां। एक ही ऑप्शन बचती है सी ई, आप ई ते आ जावांगे। ठीक है, ये चीज़ बेटा इत्थे बस आई गां दी गां लिखी नहीं है। ई तो देखो 4 एजिस है, कोई भी एज चूज़ कर सकते सी, आप एफ वाली कर ली। ठीक है, इनू रिमूव कर दिता, एफ तो जी ते चले गए क्योंकि एक ही एज रह गई सी। उस बाद देखोगे कट एज नहीं लैनी हैगी, पर कोई भी कट एज नहीं हैगी, तुसीं कोई भी चूज़ कर सकते। आप एच ते चले गए। क्लीयर, इनू कट कर रिमूव कर दिता। एच तो एक ही ऑप्शन है, वापस सी ते आ गई। क्लीयर। एफ आप गई या एच वाली भी चली गई, तो एक ही एज बचेगी, आप इस ते जी ते आ गए, जी तो वापस आप ए ते आ जावांगे। इस तरह अपने कोले जिहड़ा हैगा ये पाथ सर्किट जिहड़ा वो बन जाएगा। तो नाल डिस्क्रिप्शन जरूर लिखी जानी हैगी, तो रिक्वायर्ड सर्किट अपने कोले इस फॉर्म च बनेगा। आप वर्सिस नूं रिपीट कर सकते हैं, पर एजिस रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्लीयर, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नैक्सट जी एग्जाम्पल्स है वो भी इसी तरह ही है बेटा, सेम उसी तरीके नाल टेबल बना के पहलों इन्हां दी की करनी है, तुसीं डिग्री लिख लेनी है। हरेक दी डिग्री ईवन आ रही है तो इट मीनस इस भी अपने को सर्किट ही बनेगा, स्टार्टिंग तो एंडिंग पॉइंट सेम आएगा। अगली थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल्स भी आप डिग्रीज लिखी है, तो आपने देखा कि एफ ते आई दो वर्सिस है जिन्हों की डिग्री अपने को ओड हैगी, बाकी सब दी ईवन है। तो तुहानूं कहा सीगा कि जे दो वर्सिस की डिग्री ओवन है तो वो अपने को पाथ यूलर पाथ बनाते, तो इत्थे अपने को यूलर पाथ बनेगा। क्लीयर, तुसीं कितों भी स्टार्ट कर सकते होगे, जिवें कि इन्होंने एफ तो स्टार्ट किया है। क्लीयर, तुसीं किसी भी पॉइंट तो स्टार्ट कर सकते, कोई जरूरी नहीं है तुसीं इत्थों ही स्टार्ट ए तो भी स्टार्ट कर सकते सीगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि जो आप ए तो स्टार्ट करते तो मे बी आप ए टू बी, बी टू डी चले जाते, क्योंकि हर पिछले आप रिमूव करने डी टू सी, सी टू ए। क्लीयर, ए ते जाके अपनी जी गड्डी है वो रुक जाती, क्योंकि इत्थों सारिया एजिस अपने रिमूव हो चुकी तो आप इधर नहीं आ सकते, इस करके आप एफ पॉइंट है जो वो चूज़ किया गा। एफ क्यों चूज़ किया, जे आई चूज़ कर देगी तो वापस आई भी तुसी कर सकते हो, आई तो एफ ते चले जाओ। ठीक है, एफ तो जी, जी तो एच, एच तो डी। ठीक है, इस तरह जिहड़ा हैगा ये अपने कोले एच तो डी, डी तो सी, सी तो ए तो बी, बी तो डी, डी तो ई तो एफ। ठीक है, एफ ते आके अपना जिहड़ा हैगा सर्किट खत्म हो जाता। जो एफ तो स्टार्ट करांगे तो आई ते आके खत्म हो जाएगा, कि तुसीं दोनों चों किसी भी पॉइंट च जा सकते सीगे। क्लीयर, दैट इज़ अ यूलर पाथ है, अपने कोले बन जाएगा। इस दे नाल दियां रिलेटेड प्रॉब्लम्स बेटा तुसीं 7D एक्सरसाइज दे विचों कर सकते होंगे। इंपॉर्टेंट है ये जो भी तुहानूं करवाया गया, यूलर पाथ ते एल्गोरिदम दोनों चीज़ां ही इंपॉर्टेंट है, इन्हां नाल रिलेटेड कोई ना कोई सम तुहानूं पेपर च जरूर आ जाता है। थैंक यू बेटा।